Good morning, children. Welcome to online class. Children, we have started with a new chapter, that is chapter number 4 of your course book, The Dream Children. It is written by Charles Lamb. We have already done about the introduction of it and the detail of the writer, that is Charles Lamb. Now, children, in this story there are two main characters. Okay, that is the two children, Alice and John. As we have came to know earlier that Alice was signifying the Charles' grandmother and John was signifying Charles' brother. John, who was very courageous, which is given in the chapter, and very brave, he died an early, means he was dead when he was a small child. Okay, children? So the two children mentioned in this lesson are signifying the author, the writer's brother and grandmother. Okay, children? Like this, the story moves ahead. Then what happened, children? Now, this story is basically, it is centrally playing around a place where the grandmother used to live. That house was a very big house. It was not a very small house, it was a very big house where all the children, they used to gather. And he is telling about the grandmother that my grandmother used to love all the children a lot. She was very fond of children and she used to love all the children a lot. Clear, children? Like this way, Charles was very attached to the grandmother. She was very attached with the house and Charles was very attached to the grandmother. Now Charles is saying that the house in which my grandmother was living, okay, the place, the house in which the grandmother was living, that house was in the North Fork. Okay, that house was very big. It was a very big old mansion. Clear? It was a very big house. It was like a big mansion. And the owner of the house was living in the countryside. They have made a modern house. Grandmother was living in the rented house, but the owner was living in another house which was also very big. And it was a very modern house, okay? And grandmother was living in an old construction and an old type of house. Okay, children? But everyone used to think that grandmother is the owner of that particular house because she was living there from a very long time. Okay? Everyone used to think that this house belongs to grandmother. And grandmother was living in that house from a very long time. And children, one more thing the author is mentioning in the second paragraph, in the beginning of the chapter, is that there was one incident which happens in the wood. Near the house, there was fine and there was a fine forest, small forest with trees and other green grasses and other things, where two small children were killed by author's uncle. Two children were killed and they were laid there only. They were left in the forest, uncovered. They were not covered with anything. They were not covered with wood. They were not covered with mud. Okay? They were killed and they were left there only. Clear? And after a few days, when there was a person named Robin, he came across the dead body of the children. He has covered the dead body with leaves. Okay? So, this story plays around these two children. Now, he believed that he was a very cruel person who has killed the two children and left them in the village to die. Clear? So, this was told by Charles Lamb that two children were killed and they were left in the forest. And after a few days, Robin, one person, he has put leaves on the dead bodies of the two children. So this is the main centered part of the story, and around this only the story is revolving. The lesson we are going to see that how these two children are related with the grandmother's house. Okay, children, till now in the story हमने अभी तक देखा कि ये कहानी जो है वो दो बच्चों के बारे में चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं, जिन्हें वो अपने ही बच्चे बताते हैं, मगर वो किनके नाम रहते हैं? ग्रैंडमदर का नाम रहता है एलिस एंड जो उनके ब्रदर रहते हैं उनका नाम रहता है जॉन.
तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा है जॉन और एलेक्स। ठीक है, ये इन बच्चों को कहानी सुनाते रहते हैं एक दोपहर में वो बैठ के अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। और वो ये भी मेंशन करते हैं कि जिस तरह मेरी ग्रैंड मदर मुझे कहानी सुनाती थी और बाकी बच्चों को कहानी सुनाती थी, अब ग्रैंड मदर तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने बच्चों को कहानी सुनाऊं। तो जब वो कहानी सुनाते हैं तो वो दो बच्चों के बारे में बताते हैं, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं, अपने ब्रदर के बारे में बताते हैं इस वाली स्टोरी में। जब वो बच्चों को बताते हैं स्टोरी तो वो ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो मेरी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों बच्चे हैं वो अपनी अपनी कुछ मस्ती कर रहे हैं, मगर वो लोग कहानी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, वो बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो एक बहुत बड़े से घर में रहती थी। उनका बहुत बड़ा सा एक मेंशन था, बहुत बड़ा घर था। उस घर में वो रहती थी और वो घर का जो ओनर था वो कहीं दूर रहता था, कंट्री साइड में रहता था। उसने एक नया घर बनाया था जो बिल्कुल मॉडर्न था। जिस घर में ग्रैंड मदर रहती थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइप का घर था और वो जिस टाइप के घर पुराने ज़माने में हुआ करते थे वो उस टाइप का घर था। मगर जिस घर में ओनर रहता था वो ओनर बहुत ही सुंदर, बड़े और नए मॉडर्न तरीके के घर में रहता था और उसकी ग्रैंड मदर के घर में एक चिमनी थी। ठीक है, और वो चिमनी के बारे में भी स्पेशली यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं, जो हमें आगे देखते हैं। तो जो राइटर था वो ये बोलता है कि जब हम जाते थे वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने, स्पेंड करने अपना टाइम, तो हमारी ग्रैंड मदर हमें बहुत सारी कहानी सुनाती थी। और जो चार्ल्स था वो बहुत ज़्यादा अटैच था ग्रैंड मदर को, और ग्रैंड मदर को सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। ग्रैंड मदर को जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे उनकी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। ठीक है, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है, अब इसमें जो लेखक है वो आगे लिखते हैं कि एक बार क्या होता है, एक बार उनकी ग्रैंड मदर का घर था जंगल के बहुत पास। ठीक है, नॉर्थवॉक्स में का घर था और जंगल के बहुत पास का उनका घर। उस जंगल के पास एक बार एक इंसिडेंट हुआ। उनके एक अंकल थे जिन्होंने दो बच्चों को मार के जंगल में छोड़ दिया था। उन्होंने उनको मार दिया था और जंगल में छोड़ दिया था। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक पर्सन जाता है जिसका नेम रहता है रॉबिन। रॉबिन वहाँ जाता है और उन बच्चों मतलब रॉबिन जाता है जंगल में और वो देखता है कि दो बच्चों की बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है। तो उन बच्चों की डेड बॉडी को वो पत्तियों से कवर कर देता है। जिसने उनको मारा रहता है उसने उन बच्चों को अनकवर्ड छोड़ देता है, मतलब उनके ऊपर ना ही कुछ मिट्टी डालता है, ना ही पत्ते डालता है, ना ही उन्हें किसी चीज़ से ढकता है, वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। मगर जो रॉबिन रहता है वो उन बच्चों को किस चीज़ से कवर करता है, वो उन बच्चों को पत्तियों से अच्छी तरीके से कवर कर देता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। जब वो इस कवर कर देता है और जब वो वहाँ से चला जाता है, उसके बाद वो देखता है, उसके बाद ये जो राइटर रहता है इसके ऊपर इन चीज़ों का बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बेस्ड ऑन दिस ओनली उन्होंने ये एक जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये वाला स्टोरी लिखा है। इसका एक और मेन इम्पॉर्टेंट सेंट्रल कैरेक्टर है वो उनकी ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर के बारे में वो बोलते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा काइंड, लविंग एंड केयरिंग वुमन थी। उन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्रेज करता है और कहता था कि मेरी ग्रैंड मदर इतने बड़े घर में बिना डर के अकेले रहती थी और वो इतनी काइंड थी, इतनी अच्छी थी, इतनी इनोसेंट थी कि हर कोई उनको बहुत प्यार करता था। भले वो गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, मगर वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा, उसकी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और सबको यही लगता था कि जिस घर में ग्रैंड मदर रहती है वो घर उनका खुद का है, वो घर ग्रैंड मदर के खुद का है। So children, now in this story, this one more central character is there, and that is the grandmother. In this story, the poet is saying that grandmother is a lady who used to live alone in the big mansion. जो घर था वो बहुत बड़ा mansion, बहुत बड़े पैलेस के जैसे था। ठीक है, ग्रैंडमदर का खुद का घर नहीं था, मगर सबको लगता था ये ग्रैंड मदर के खुद का घर है। क्यों ऐसा लगता था? क्योंकि ग्रैंड मदर जो है बहुत सालों से उस घर में रहती थी। It has been a very long time that the grandmother was living in this particular house. वो बहुत
very kind, humble, good, and she used to love children a lot. Okay? वो अपने सारे grandchildren को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. She used to love the grandchildren a lot, and she used to tell lots of stories to the grandchildren. Okay, children. Now the writer also says that in this lesson, okay, in this lesson there is one more important character, that is John. Okay, so there are four main characters, that is the two children, grandmother and brother John. Fine. So he used to say that जब भी हम लोग वहाँ जाते थे वेकेशन के लिए, the children used to enjoy a lot. और सबसे ज्यादा जो लेखक को जो बात पसंद आती थी वो थी ग्रैंड मदर की स्टोरी. जो बच्चे वहाँ पे थे वो लोग को ग्रैंड मदर की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आती थी. स्पेशली चार्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद आती थी ग्रैंड मदर की स्टोरी. ये चिल्ड्रन, और उन लोगों का जो घर था वो बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा अच्छा था. ठीक है. Now children, in this story the writer, that is the Charles, loved the story told by the grandmother. जो स्टोरी ग्रैंड मदर उनको बताती थी वो स्टोरी उनको सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू डू दिस मच ओनली. प्लीज कंप्लीट योर वर्क, ओके, एंड प्लीज कंप्लीट योर नोट्स एज सून एज पॉसिबल. आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट डज द चिल्ड्रन सिग्निफाइज इन द लेसन? चिल्ड्रन क्या सिग्निफाइज करते हैं? जो दो बच्चे हैं इस लेसन में वो लोग क्या सिग्निफाई करते हैं? इस लेसन में वो लोग सिग्निफाई करते हैं एक पास्ट अनफॉरगेटन स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो चार्ल्स अभी तक भूल नहीं पाया है. अब जो उसको बचपन में सुनाई गई थी मगर वो अभी तक उस कहानी को भूल नहीं पाया है, वो कहानी इसमें वो दर्शाया गया है, वो कहानी बताई गई है इस लेसन में. Okay class, that's all for today. Now children, please complete the work, whatever work has been given to you. Okay children, have a great day. Thank you.